हेलो फ्रेंड्स, चैप्टर 12 बायोलॉजिकल रेफरेंस इंटरवल, इसके बारे में आज हम लोग समझेंगे। चलिए देखते हैं क्या इम्पोर्टेंट है इसमें, इसको समझने का प्रयास करेंगे। रेफरेंस रेंजेज। ये रेफरेंस रेंज इज a set of values that includes upper and lower limits of a lab test based on a group of otherwise healthy people. The values in between those limits may depend on such factors as age, sex, and a specimen type, blood, urine, spinal fluid, etc., and can also be influenced by circumstantial situations such as fasting and exercise. These intervals are thought of as normal ranges or limits. Though the term reference interval is usually the term referred by laboratory and other health professionals, the more commonly known term is reference range. Reference ranges provides the values to which the clinician compares your test results to and determines your current health status. Each laboratory establishes or validates its own reference ranges, thus reflects differences that vary from lab to lab. The specific reference ranges that appear on the laboratory report are determined and provided by the laboratory that perform the test. Reference range help describe what is typical for particular group of people based on age, sex, and other characteristics. Given below are the normal biological reference intervals for some common analytes. This list is not exhaustive, for which students are requested to refer to textbooks on clinical biochemistry, but would appear to be adequate for undergraduate students. Now, there is a trend to express all values in clinical chemistry in SI units, System International Unit, which was adopted by the International Federation for Clinical Chemistry in 1967. The values of some constituents of clinical interest in normal blood are given in Table 1. Table 6. Reference range of blood constituents expressed in conventional unit and SI unit. Reference range of blood constituents expressed in conventional unit and SI units. Constituents in serum or plasma. Conventional way of expression and conversion factor और इधर है expressed in SI unit. तो पहला है एलानिन एमिनो ट्रांसफेरेज, एलानिन अमीनो ट्रांसफेरेज, SGPT और ALT, एलानिन अमीनो ट्रांसफेरेज। कन्वेंशनल वे ऑफ एक्सप्रेशन कुछ नहीं, कन्वर्सन फैक्टर कुछ नहीं है, एक्सप्रेस्ड इन SI यूनिट तो 10 से 40 इंटरनेशनल यूनिट पर लीटर होना चाहिए। SGPT और ALT कितना रहना चाहिए? 10 से 40 के बीच। एल्बुमिन, एल्बुमिन कन्वेंशनल वे ऑफ एक्सप्रेशन 3.6 to 4.7 ग्राम पर 100 ml पर 100 ml। कन्वर्सन फैक्टर 10, तो एक्सप्रेस्ड इन SI यूनिट 36 से 47 ग्राम पर लीटर। SI यूनिट में 36 से 47 ग्राम पर लीटर हो जाएगा।
अल्कलाइन फॉस्फेटेज, अल्कलाइन फॉस्फेटेज कन्वेंशनल वे नहीं है, कन्वर्सन फैक्टर भी नहीं है। एसआई यूनिट क्या है इसका, तो 40 से 125 यूनिट पर लीटर, इंटरनेशनल यूनिट पर लीटर, 40 से 125 अल्कलाइन फॉस्फेटेज। अमाइलेज, इसका भी कन्वेंशनल वे ऑफ एक्सप्रेशन नहीं है, तो कन्वर्शन फैक्टर भी नहीं है। इंटरनेशनल यूनिट 40 से 100 यूनिट पर लीटर, 40 से 100 यूनिट पर लीटर। एस्पार्टेट अमीनो ट्रांसफेरेज, SGOT, एस्पार्टेट अमीनो ट्रांसफेरेज, SGOT AST, कन्वेंशनल वे भी नहीं है, कन्वर्शन फैक्टर भी नहीं है, और सीधा ऐसा यूनिट 10 से 35 यूनिट पर लीटर, 10 से 35 यूनिट पर लीटर। तो SGOT AST 10 से 35 है और SGPT ALT 10 से 40 है, लगभग सेम ही है। बाइकार्बोनेट्स, टोटल CO2 24 से 30 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, कन्वर्सन फैक्टर 1, तो इंटरनेशनल यूनिट में भी वही रहेगा, 24 से 30 मिलीमोल पर लीटर। अच्छा, मिलीमोल आ जाता है मिली इक्विवेलेंट से, ठीक है। बिलिरुबिन, टोटल बिलिरुबिन 0.12 से 1 मिलीग्राम पर 100 ml, कन्वर्सन फैक्टर 17, तो ऐसा यूनिट हो गया 2 से 17 माइक्रोमोल पर लीटर, माइक्रोमोल पर लीटर 2 से 17। कैल्शियम, कैल्शियम 8.5 से 10.5 मिलीग्राम पर 100 ml, या नीचे है 4.24 से 5.24 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, मिलीग्राम पर 100 ml है, तो इसका कन्वर्सन फैक्टर 0.25 हो जाएगा, 2.12 से 2.62 मिलीमोल पर लीटर, मिली इक्विवेलेंट में है, तो इसका कन्वर्सन फैक्टर 0.50, इसका वैल्यू हो जाएगा 2.12 से 2.62 मिलीमोल पर लीटर, दोनों सेम ही इंटरनेशनल यूनिट। क्लोराइड Cl 95 से 107 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, कन्वर्सन फैक्टर 1 है, तो 95 से 107, 95 to 107 मिलीमोल पर लीटर, इंटरनेशनल यूनिट में भी यही रहेगा। कंस्टिट्यूएंट्स इन सीरम और प्लाज्मा, कोलेस्ट्रॉल टोटल लेस देन 200 मिलीग्राम पर 100 ml, कन्वर्सन 0.026, लेस देन 5.2 मिलीमोल पर लीटर होना चाहिए। HDL मेल 19 से 62 मिलीग्राम पर 100 ml, 0.06, सबका 0.06 है कन्वर्सन फैक्टर, और ये हो जाएगा एसआई में 0.5 से 1.6 मिलीमोल पर लीटर होना चाहिए। HDL फीमेल में 23 से 74 होना चाहिए, 74 मिलीग्राम पर 100 ml कन्वेंशनल वे में, और एसआई में 0.6 से 1.9 मिलीमोल पर लीटर। VLDL वेरी लो डेंसिटी लिपिड 10 से 30 मिलीग्राम पर 100 ml होना चाहिए, और ये एसआई में कितना है 0.26 से 0.7 मिनट के बीच होना चाहिए। क्रिएटिन काइनेज CPK, क्रिएटिनिन काइनेज मेल में इंटरनेशनल यूनिट है 30 से 200 यूनिट पर लीटर होना चाहिए, और फीमेल में 30 से 150। क्रिएटिनिन 0 से 0.2
30 to 1.36 मिलीग्राम पर लीटर। कन्वर्शन फैक्टर 88 तो हो जाएगा 26 से 120 माइक्रोमोल पर लीटर एसआई में। गामा ग्लूटामिल ट्रांसफेरेज जीजीटी, गामा ग्लूटामिल ट्रांसफेरेज जीजीटी मेल में 10 से 55 यूनिट पर लीटर होना चाहिए और फीमेल में 5 से 35 यूनिट पर लीटर। उसके बाद है ग्लोब्यूलिन। ग्लोब्यूलिन 1.8 से 3.1 ग्राम पर 100 ml होना चाहिए, ठीक है। कन्वर्सन 10 है तो 18 से 31 ग्राम पर ml पर लीटर। उसके बाद ग्लोब्यूलिन 18 से 31 हो गया। ग्लूकोज फास्टिंग जो है 60 से 104 मिलीग्राम पर 100 ml होना चाहिए। कन्वर्सन फैक्टर 0.0555 तो एसआई में हो जाएगा 3.3 से 5.8 मिलीमोल पर लीटर। फास्टिंग ग्लूकोज 60 से 104 मिलीग्राम पर 100 ml लिखा है। ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन, ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन जिसको HbA1c बोलते हैं, ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन ये 5 से 6.5% रहना चाहिए और इंटरनेशनल में भी वही है 5 से 6.5%। आयरन मेल में 78 से 178 माइक्रोग्राम पर 100 ml होना चाहिए। कन्वर्सन फैक्टर 0.18 तो हो जाएगा 14 से 32 माइक्रोमोल पर लीटर। फीमेल में 56 से 156 माइक्रोग्राम पर 100 ml होना चाहिए। इसका भी कन्वर्सन फैक्टर 0.18 है तो 10 से 28 माइक्रोमोल पर लीटर। आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी 251 से 402 माइक्रोग्राम पर 100 ml पर 100 ml 251 से 402 माइक्रोग्राम पर 100 ml। कन्वर्सन फैक्टर सेम 0.18 तो हो जाएगा इंटरनेशनल में 45 से 72 45 to 72 माइक्रोमोल पर लीटर। लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज LDH टोटल, लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज LDH जो है 230 से 460 माइक्रो बोलते हैं इंटरनेशनल यूनिट पर लीटर। 230 से 460 इंटरनेशनल यूनिट पर लीटर लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज। मैग्नीशियम जो है 1.5 से 2.0 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर होता है। मिलीग्राम में देखें तो 1.82 से 2.43 मिलीग्राम पर 100 ml मैग्नीशियम होना चाहिए। अगर इसको चेंज किया जाए तो इंटरनेशनल यूनिट में 0.75 से 1.0 मिलीमोल पर लीटर। ऑस्मोलारिटी 280 से 280 से 290 मिलीमोल पर लीटर होना चाहिए। कन्वर्सन फैक्टर 1 है तो सेम ही रह जाएगा 280 से 290 मिलीमोल पर केजी। फॉस्फेट्स फास्टिंग में फॉस्फेट होना चाहिए 2.48 से 4.34 मिलीग्राम पर 100 ml। कन्वर्सन फैक्टर 0.322 तो इंटरनेशनल यूनिट हो गया 0.8 से 1.4 मिलीमोल पर लीटर फॉस्फेट फास्टिंग का। पोटेशियम सीरम 3.6 से 5.1 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर 3.6 से 5.1। पोटेशियम 3.6 से 5.1 मिलीमोल पर लीटर या फिर मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। इसके बाद है प्रोटीन टोटल सीरम 6 से 8 ग्राम पर 100 ml होना चाहिए। कन्वर्सन फैक्टर 10 तो 60 से 80 ग्राम पर लीटर। सोडियम
सीरम 132 से 144 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर होना चाहिए। ये केमिस्ट्री फैक्टर 1 है, तो सेम ही चाहिए 132 से 144 मिलीमोल पर लीटर। 132 से 144 मिलीमोल पर लीटर। सोडियम ट्रांसफेरिन 0.2 से 0.4 ग्राम पर 100 ml। 2.0 4.0 ग्राम पर लीटर। ट्राइग्लिसराइड 12 आवर फास्टिंग 12 घंटे का फास्टिंग से किया जाता है। 53 से 150 मिलीग्राम पर 100 ml। 0.0113 0.6 से 1.7 मिलीमोल पर लीटर। यूरिक एसिड मेल में 2.0 से 7.0 मिलीग्राम पर 100 ml। 0.0595 0.12 से 0.42 मिलीमोल पर लीटर। फीमेल में 2.0 से 6.0 मिलीग्राम पर 100 ml। 0.12 से 0.36 मिलीमोल पर लीटर। यूरिया 15 से 40 मिलीग्राम पर 100 ml। 0.166 2.5 से 6.6 मिलीमोल पर लीटर। 15 से 40 मिलीग्राम रहना चाहिए यूरिया पर ml। 2.5 से 6.6 मिलीमोल पर लीटर। यूरिक एसिड 2 से 7 मिलीग्राम पर 100 फीमेल में। और अगर ऐसे ही नहीं तो 0.12 से 0.42 मिलीमोल पर लीटर। तो ये था रेफरेंस रेंज। नेक्स्ट चैप्टर जो है 13 स्पेसिमेन कलेक्शन इन क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री लेबोरेटरी, इसको डिस्कस करेंगे। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।